अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। इनकलाब फिल्म का ये गाना है जिसमें अमिताभ बच्चन बिल्कुल चक्रव्यूह पे फंस जाते हैं और उन्हीं पर ये गाना फिल्माया गया है। झारखंड में जयराम महतो की स्थिति फिलहाल अभिमन्यु वाली हो गई है। वो चक्रव्यूह में घुस तो गए हैं, लेकिन चक्रव्यूह से निकलेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? कुड़मी रेल टेका से पहले जयराम महतो झारखंड के बेटे थे। कुड़मी रेल टेका के बाद वो कुड़मी का बेटा हो गए। लेकिन अब असली खेल यहां से शुरू होता है। कुड़मी भी जयराम महतो को किस हद तक अपना मानेंगे और किस हद तक उनका साथ देंगे। अब ये सवाल इसलिए क्योंकि हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो कोटशिला का है। कुड़मी रेल टेका आंदोलन के सबसे बड़े नेता में से एक है अजीत कुमार महता। अजीत कुमार महता कोटशिला में जो रेल टेका हुआ तो बंगाल सरकार, बंगाल जिला, कोटशिला जिला प्रशासन की तरफ से 56 लोग थे, संभवतः 56 लोग थे शायद। 56 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और उनको जेल भेजा गया। सुदेश महतो मिलने का बोले कि मैं इनका खर्च उठाऊंगा। सुदेश महतो ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। कल उनको जेल से बेल मिल गई, सब बाहर आ गए। इसी बीच जयराम महतो भी पहुंचे तो कोटशिला जाकर के मिले थे, एसपी से बात भी की थी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अजीत कुमार महता सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जयराम महतो पर निशाना साध रहे हैं। जो 56 लोग निकले उनका स्वागत करने के लिए अजीत कुमार महता पहुंचे थे। तो देखिए, सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं वो। बंगाली का वीडियो, ये बांग्ला में है। हमको लगता है कि आप लोगों के समझ में आ जाएगा। एक बार सुनिए। মানে আজকে তারা কানে শুনতে পাচ্ছে না, মুখে বলতে পারছে না। এই যে নীরবতা কিসের জন্য? আজকে তোমার জাতিসত্তা তোমার কোথায় যাচ্ছে? তোমার আজকে জাতিসত্তা কোথায়? আমাদের আজকে যে কুরবানি ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি কোথায় যাচ্ছে? এর জন্য তুমি দল করো। আমরা বলেছি তুমি দল করো, কিন্তু মনে রাখবে দলের চেয়েও বড় তোমার জাতিসত্তা। এই জাতিসত্তা যদি না থাকে, তোমার ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি যা থাকে না, আজকে বিলুপ্তির পথে আমরা। আজকে আদিবাসী কুর্মী সমাজ যে আমরা আন্দোলন করছি, এই আন্দোলনের যথার্থ সাইন্টিফিক বিজ্ঞান আমাদের মাঝে বিভিন্ন রকমভাবে প্রশাসনিক কায়দায় আমাদের দমন পীড়ন তো চলছে। আমাদের মাঝে বিভাজন করা তৈরি করছে। বিভাজনের আজকে আমরা শিকার। বিভিন্ন কায়দা করে বিভাজন করার চেষ্টা করছে আমাদেরকে, কিন্তু কেউ বিভাজনের শিকার হবে না। আগামী এইটার জন্য, এই পরিপ্রেক্ষিতে আবার কিন্তু আমরা বলেছি আমরা যাচ্ছি কোথায়? কোটশিলা আমরা যাচ্ছি। কবে? আমরা মোটামুটি ডেট করেছি 29 তারিখে। কালকে ক্লিয়ার হয়ে যাও। 29 তারিখে আমরা বলেছি, এসপিকেও বলছি, সবাইকে বলছি 29 তারিখে আপনারা রেডি থাকবেন। কোনো গায়ে কোনো লোকে 20 কিলোমিটার 15 কিলোমিটার কেউ বাস করবে না, কোনো গাড়ি করবে না। একদম পৈদলে ছায়া ছুলু নিয়ে সব একদম আগুন গুলা বন্ধ করেন। একটা বুড়া লোক থাকবে, কেবল ঘর রাখা, সব কিন্তু হাঁটে আসবে ওইখানে। এবং সেদিন আমাদের 10টা কাড়া খুঁজবো আর 10টা গরু খুঁজবো। কারণ আমরা জেলেই ছিলি। দুর্গাপূজা কিন্তু আমাদের বড় পরব ওঠে বান্দনা পরব। সেই বান্দনা পরবটা ঘুরে আমরা করবো ওইখানে, ওই 29 তারিখ। সমস্ত 4 জেলার সমস্ত নেতৃত্বের কাছে অনুরোধ, 4 জেলার সমস্ত নেতৃত্বের কাছে অনুরোধ, আপনারা সবাই থাকবেন, সবাই আসবেন, সেদিন সবাই আসবেন। আর আমাদের মাঝে এই যে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া তৈরি করা আছে, বিভিন্নভাবে আমাদের উপর আবার বড় প্লেয়ার আনা হচ্ছে বিভিন্ন কায়দা করে। এইগুলোর জন্য আপনারা ঠিক থাকবেন। কোনটা বড় প্লেয়ার আসছে, খেলতে আসছে, কীভাবে আসছে। আমরা অবাক হয়ে গেছি এইখানে যে আমরা একজন নেতৃত্বকে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, জয়রাম মাহাতোকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেছিলাম। কারণ আজকে যুব সমাজ সত্যিকারের ওয়ার্ককে ভালোবাসে, আমরা ভালোবাসছি। কিন্তু সেদিন ও যে আসলো আমাদের কি বলে জিদারু তুমি কেন এলে? জয়রাম ভাই এসেছে ওখানে উৎপীড়িতের কাছে, যে গ্রামটায় অত্যাচারিতা পীড়িতা, সেই গ্রামে তুমি এসেছো। আর সেই গ্রাম থেকে তুমি বলছো, কি বলছো? যে পুলিশের কোনো দোষ নেই। তাহলে এই লোকগুলা কি ঢুকে দিয়েছিল এমনি? ওই লোকগুলো মার খান। একটা ছেলে এখন বললো, কোন ছেলেটা বলে পুরা মারেছে দাদা, পুরা মাথায় মারি। এই যে মারিয়েছে, অত্যাচার করেছে, এমনি অত্যাচার বলছে পুলিশের কোনো দোষ নাই। তাহলে এইখানে মিটিং হইলো, লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হইলো। তাহলে এই লক্ষাধিক সমাবেশকে তুমি তো পদাঘাত করলে, লাত মারলে তুমি। কারণ এটা ছিল শুধু পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সেই সন্ত্রাসকে তুমি কি করলে? অগ্রাহ্য করলে, বলছে পুলিশের কোনো দোষ নাই। তাহলে তুমি কোনটা? তুমি কোন লোক?
তুমি প্রথম টেস্ট করতে আসছো বেঙ্গলে, মিটিং করতে আসছো, তুমি ফেল করলে সেদিনেই জিউদুরে আসে তোমার প্রথম ফেলটা তোমার ওইখানে। তোমার বলা দরকার যে অজিত মাহাতো আমাকে ডাকিয়েছিল, আমি আসতে পারি নাই, আমাদের কাছে দেখা করার দরকার ছিল। এইখানে পুলিশ কীভাবে দমন পীড়ন করছে তুমি কি জানো? এখানে আমাদের আন্দোলনের ইতিহাস তুমি জানো? আন্দোলনের ইতিহাসটা তোমার জানা নাই, তো না জানলে লোককে তুমি ঢুকে যাচ্ছ। আর তুমি কে কে তোমাকে করলাম, মানে তোমাকে কি করছে, কোনটা কি বলাচ্ছে, কে কি বলাচ্ছে, সেটা তুমি শিকার হয়ে যাচ্ছ। তো তুমি একজন শিক্ষিত ছেলে, পিএইচডি কি করছো, এত লেখাপড়ার ছেলে, আর তুমি আজকে তুমি সেই অন্যদিকে চলে গেলে, তো অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পরিশ্রমের বিষয়। এখন কথা হচ্ছে কে কি কোনটা করবে, কে বড় প্লেয়ার কাকে না হবে, এটার জন্য রেডি থাকো। আদিবাসী কুর্মী সমাজ আছে, থাকবে, এবং আদিবাসী কুর্মী সমাজ ছাড়া পরিষ্কার কথা আগামী দিনে কুর্মী আন্দোলন আগাতে পারে নাই। প্রত্যেকটা আন্দোলনের নেতৃত্বকে আমরা দেখছি, যারা মাঝ রাস্তায় ওরা বিভিন্নভাবে বিভাজনের শিকার হচ্ছে, এবং রাজনীতি থেকে সাবধান। এখানে আমরা বলেছি আজকে বিজেপির নেতৃত্ব আছে কুর্মী, তারা আজকে একটা আওয়াজ তুলে নাই, এখানে সিপিএম এর কর্মী নেতা একটা আওয়াজ তুলে নাই। টিএমসি তো ঘোর ঘুমাচ্ছে ওরা তো একটা কথা আওয়াজ তুললো নাই। আশ্চর্য ব্যাপার, যারা ক্ষমতা আছে তাদের কাছে আমরা আশা করেছিলাম যে তুমি তো বলবে, কিন্তু একটা আওয়াজ তুলে নাই। একমাত্র আমি বলবো ঝাড়খণ্ডে এই আমাদের সুরেশ মাহাতো, আমাদের সিপি চৌধুরী, আমাদের নগেন্দ্রনাথ মাহাতো এমএলএ বিজেপির, সেও গেছিল। আমাদের লম্বোদর মাহাতো, আমাদের সিপি চৌধুরী গেছিল। এবং সেদিন ওই যেদিন রেল ওভারে, সেদিন আমাদের জয়রাম ভাইও ছিল। প্রথম সেই জন্য তাকে ডাকেছিলাম, কিন্তু পেপারে এমন লিখছে বলে জয়রাম নাম করে এই লোকগুলা হয়েছে। আরে যেদিন আমাদের এই হুলহুলির টানে মিটিংটা করেছিল, কার নামটা করেছিল? কারো নাম ছিল না। একমাত্র আদিবাসী কুর্মী সমাজের আন্দোলন, আর আদিবাসী কুর্মী সমাজের আন্দোলনের মাঝেই মানুষ পৌঁছেছে, আর এখানেও পৌঁছলে আগামী দিনেও আন্দোলন হবে। পরিষ্কার কথা, সময় সাপেক্ষ আছে, সময় কিছু কথা বলবে। আদিবাসী কুর্মী সমাজের নেতৃত্বে কুর্মী এসটি হবে, পরিষ্কার কথা, কুর্মী এসটি হচ্ছে। सुना आपने? तो कुल मिलाकर के सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी तो पसंद है, पर जयराम से ऐतराज है। इसी चक्रव्यूह की बात कर रहे थे, और आज के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए हैं जयराम महतो। आरती बिल्कुल वो मतलब ऑन कैम अगर कुछ कहें ना कहें, लेकिन ये रियलाइजेशन उनको भी है कि रेल टेका वाला जो मामला था वो उनके गले की हड्डी बनकर रह गया है। अब ना उसे निकालते बन रहा है और ना उन्हें निगलते बन रहा है। और ये दिक्कत इसलिए भी शुरू हो गई क्योंकि देखिए, जयराम में तो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ विधायक बनने राजनीति में आए हों, वो एक बहुत बड़ा पैशन उनका है, बदलाव की उम्मीद लेकर बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा रही हो ऐसा नहीं है, उनकी तरफ जो भी नजरें उठाकर देख रहे हैं झारखंड के युवा, या फिर छोड़ दीजिए पूरे झारखंड की बात, जो झारखंड का कुर्मी समुदाय है वो जरूर ये कह रहा था कि कम से कम एक ऐसा कुर्मी नेता तो आना चाहिए जिसके बारे में हम ये सब सोच सके कि आने वाले दिनों में कभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो पाएगा, जो पिछले 25 सालों में अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, और चक्रव्यूह पहला जो पड़ाव होता है चक्रव्यूह का, वो कहाँ रचा गया? वो था रेल टेका आंदोलन 20 सितंबर को जो हुआ। रेल टेका डहर छेका वाला जो आंदोलन था, उसमें जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं बाद में, पार्टी बाद में, पहले समाज आता। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उसके बाद से जो उनका एक्सेप्टेंस था, रोल ऑन, वो पूरे झारखंड में एक्सेप्ट किए जा चुके थे एक युवा ब्रिगेड के तौर पर, फायर ब्रांड नेता के तौर पर। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, देखिए देश भर में उनकी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कई नेशनल हेडिंग्स बने हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, वो हेडलाइंस तो बने हैं पूरे देश भर में। कुछ तो खूबी रही होगी उनकी। लेकिन जैसे ही जयराम महतो इस चक्रव्यूह में आते हैं, वो लिमिटेड एडिशन हो जाते हैं पॉलिटिक्स के वेरिएंट्स असल में क्या है, पॉलिटिक्स अलग तरह की चीज होती है और सोशल मीडिया अलग तरह की चीज बिल्कुल। होती है। आप सोचिए कि अगर मान लिया कभी हम जैसे ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें सब तरह के कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग गाली देंगे, कुछ लोग भड़केंगे, चीजें होंगी, नॉर्मल है। तो इसका मतलब जयराम महतो की फैन फॉलोइंग तो है, बिल्कुल, लेकिन फैन फॉलोइंग वोट्स में कन्वर्ट होगी? नहीं होती है। नहीं। आप सबसे गजब चीज आप ये देखिएगा, जयराम महतो के जो विरोधी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम उनका बहुत बड़ा विरोधी है, या कोई एसटी उनका बहुत बड़ा विरोधी है,
या कोई जो है वो सामान्य वर्ग वाले इनके विरोधी नहीं, उनके सबसे बड़े विरोधी उनके खुद के कौम खुद में के कौम में है। और हाँ। ये जो रणनीति और ये जो चक्रव्यूह रचा गया, ये भी उनकी खुद की कौम ने रचा। ऐसा थोड़ी कि किसी एसटी ने ये चक्रव्यूह रचा या किसी मुसलमान ने रचा या हाँ, किसी ये अभिषेक भारती ने सबसे रच दिया दिलचस्प तो या यही आरती है। सिंह ने रच दिया, नहीं। ये चक्रव्यूह जो है ये रचा गया उन्हीं लोगों के द्वारा जो अपने नाम के आगे महत्व लगाते हैं, राइट। अब घाट, छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, घाटशिला के नॉमिनेशन को आप देखिए, रामदास मुर्मू नॉमिनेशन के लिए पहुंचे, जितना गाड़ी का काफिला बाबूलाल सोरेन में नहीं था, जितना गाड़ी का काफिला सोमेश सोरेन में नहीं था, उससे ज्यादा गाड़ी का काफिला रामदास मुर्मू के हाँ, उसमें का था। काफिले में कम था, से हाँ। कम 200-250 स्कॉर्पियो थी, लेकिन वो वोटर नहीं था वहां के। वो हाँ, ये तो बेबी महतो के साथ बातचीत के दौरान भी है चीजें ना, साफ तो वो हुई। वोटर नहीं थे। हाँ। सोशल मीडिया पर ये लोग माहौल बना लेंगे, हम्म। लेकिन जब एक्चुअली वोट देने का, मुझे तो कुछ लोगों ने दावा किया कि रामदास मुर्मू को जो 8,000 वोट आए, इस बार तो उनको 6,000 समथिंग के वोट पहुंच जाएगा, वो 2,000 वोट कहा, जिसका मतलब कुर्मी समाज भी एकमुश्त होकर जयराम को वोट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जयराम को कुर्मी समाज भी एकमुश्त वोट नहीं कर रहा है, वो कुर्मी समाज या तो बीजेपी या जेएमएम की तरफ जा रहा है। तो सोशल मीडिया, जयराम को ये चीज समझनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया का माहौल, एग्रेशन अच्छा है, लेकिन वो लोगों से, चूंकि उसको लेकर के तालियां तो आप गेन कर सकते हैं, लेकिन जो वोटर होता है वो बहुत शातिर होता है। उस वोटर तक आप कैसे पहुंचेंगे? वोटर ये जानता है कि मैं वोट दूंगा तो मेरे वोट से, मान लिया कि मैंने चलिए 1 मिनट के लिए रामदास मुर्मू को या बाबूलाल सोरेन को जिता दिया, तो बाबूलाल सोरेन जीत जाएंगे या रामदास मुर्मू जीत जाएंगे, तो घाटशिला में क्या बदलाव आ जाएगा? एट द एंड ऑफ द डे एक सड़क बनाने के लिए उनको हेमंत सोरेन की तरफ देखना पड़ेगा। हेमंत सोरेन बोलेंगे मैं तो फंड ही रिलीज नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो वोटर बहुत शातिर है, वो जानता है कि उसकी जरूरत क्या है। और सबसे बड़ी चीज, विकासवादी राजनीति झारखंड की जरूरत हो सकती है, झारखंड के लोगों को पसंद नहीं है, उस पर लाइक्स कमेंट्स वो सब आपको मिल सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वोट वो अपने मुद्दे पे करेंगे। बिजली पानी के मुद्दे पर वो, अगर बिजली पानी मुद्दा होता तो कोई 25 साल से विधायक नहीं रहता। लोग यहाँ 25-25 साल से विधायक, सीपी सिंह को ही देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। रांची हाँ। के कई इलाकों में सड़कों लेकिन की हालत खराब है, लेकिन मेन सीपी सिंह आप विधायक बन रहे प्रोमिनेंट ना। एरिया में ही चले जाइए, रातू रोड के तो इलाके में ही घुसिए वही आप, कह रहा हूँ। क्या है। तो कुल मिला के लेकिन जयराम हाँ, को ये नहीं, समझना है। जयराम के लिए एक चीज और है, जिस चक्रव्यूह की बात हो रही है ना, आप देखिए, और कुर्मी समुदाय के लिए ये कहें कि ये दंश ही है कि वो कभी भी एकजुट नहीं हो पाया। आज भी अगर चक्रव्यूह रचा गया है तो उनके ही लोगों ने उनके लिए चक्रव्यूह रचा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ से भी अगर जयराम महतो अगर नहीं समझते हैं, तो अभी 4 साल हैं आने वाले चुनाव में, तो अगर इन 4 सालों में भी अगर वो ये जो मैनेजमेंट अपना अगर चेंज नहीं करते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते हैं, तो फिर ये बड़ा डिजास्टर उनके लिए 2029 में होगा। अब आप ये सोचिए कि जो महतो लोग, आप जब रेल टेका करने गए तो ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ जेएलकेएम के नेता थे या फिर जयराम महतो थे, उस वक्त आजसू साथ खड़ा था भाई, सुदेश बीजेपी के महतो, नेता भी उतरे हैं। बीजेपी के नेता साथ में खड़े थे। लेकिन आज जब उन्होंने जब अलग अपना कि एक जाहिर तौर पर इंडिविजुअल पार्टी है वो, तो एज एन इंडिविजुअल वो अपनी चीजों को रखेंगे। जब घाटशिला में वो उतरते हैं तो फिर उनके खिलाफ पूरा ये षड्यंत्र रचा जाता है और उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। एक बंदा जो हर जगह जाकर कह रहा है कि आप वोट करिए, आप यही कहते हैं ना, आप पब्लिक से तो यही कहते हैं कि भाई वोट करना है, और उसी समय आप ही के खेमे के लोग खड़े होकर आप ही के खिलाफ कह रहे हैं कि वोट बहिष्कार होगा। वहां पर लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आप आजसू के हैं या जेएलकेएम के हैं, वहां पे लोग आपको कुर्मी नेता के तौर पर देख रहे हैं। और ये जो परसेप्शन कुर्मी वोटर्स में जा रहा है, इसका खामियाजा, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम को ही होने वाला है, किसी और पार्टी को नहीं होने वाला है। आप समझिए, सुदेश महतो ने भी समर्थन किया। हाँ, सुदेश महतो भी रेल टेका में गए। बिल्कुल। अब हुआ क्या कि जयराम के साथ एक और दिक्कत है, मैं आपको बताऊं, जयराम अपने साथ कम से कम 20 यूट्यूबर्स को लेके चलते हैं, कम से कम 20 तो चलता है। अब होता क्या है, सुदेश महतो रेल टेका में वो उतना एम्फेसिस नहीं था, जयराम महतो रेल टेका में, जयराम ने बोल दिया कि नहीं मैं पार्टी जेएलकेएम जो है वो कुर्मी के साथ खड़ा। साइन तो हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन ने भी किया, लेकिन उन्होंने चुप्पी बरत ली, भाई हम तो चुप हैं। तो वो चुप्पी इनके लिए तो फायदेमंद हो गई। रामदास मुर्मू से जब आप बात कीजिए तो रामदास मुर्मू बोले कि यार साइन तो चंपाई सोरेन ने भी किया था, हेमंत सोरेन ने भी किया था, तो आज उनसे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ। और जयराम से ही सवाल क्यों किया? जयराम से इसलिए सवाल किया जा रहा है क्योंकि जयराम कहते हैं कि हम बदलाव के वाहक हैं, और इससे वो जयराम जवाब देते हैं, जवाब देते हैं, बदलाव के वाहक हैं, जवाब देते हैं, तो इसीलिए उनसे सवाल लोग कर रहे हैं कि आपने अपने आप को ऐसे दिखाया कि भाई मैं पूरे झारखंड को मैं बदलाव लेकर जाऊंगा।
तो बदलाव लेकर के आएंगे तो सवाल फिर आप ही से पूछा जाएगा। बिल्कुल। सुदेश महतो ने कभी नहीं कहा कि मैं पूरे झारखंड बदल दूंगा, हम्म, उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं। नहीं कहा। तो इसी कारण उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। वरना तो आप समझ लीजिए झारखंड के लोगों का जो स्थिति और मनोभाव जो वो समझिए कि सुदेश महतो बाबूलाल सोरेन के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता वोट बहिष्कार के लिए गाँव गाँव में घूम रहे हैं। इससे ज्यादा जो दोहरी नीति होगी वो किसके पास किसके पास, वही मैं कह रही हूँ। सामने है ये। हाँ, हाँ, लेकिन लोग उनसे सवाल नहीं लेकिन पूछ रहे। नहीं, हाँ, लोग सवाल किससे पूछ रहे हैं? लोग पूछ रहे जयराम महतो, जयराम महतो क्योंकि से। जयराम महतो ने अपने आप को दिखाया कि मैं बदलाव का वाहक हूँ, हम्म, मैं बदलाव लेकर के आऊंगा। हम्म, और मैं आपको बता रहा हूँ ये स्थिति इस तरीके की है कि जो जहां अभी 3 महीने पहले तक ये स्थिति थी कि जयराम तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे बिल्कुल। झारखंड हाँ, में, हाँ, अब स्थिति ऐसी होगी कि जयराम अगली चुनाव में अपनी डुमरी की सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे कि नहीं, इतने वही। चुनौती। तो ये देखिए, इसलिए कहा जा रहा था ना कि पॉलिटिकल इवोल्यूशन जो होता है उसके बाद आपकी मेच्योरिटी बहुत जरूरी होती है। आप कितने मैच्योर हैं, इन्हीं सारी चीजों को देखना पड़ता है। अगर जिस तरीके से रेल टेका हुआ, कई लोग बीजेपी आजसू सब नेता वहां पर थे, लेकिन उसके बावजूद वो आइसोलेट नहीं किए गए कि आप सिर्फ कुर्मी नेता है। आज भी सुदेश महतो देखिए दोनों पक्षों के साथ भाषण कर रहे हैं, बता रहे हैं, घाटशिला में अपना चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन आइसोलेट कौन हो गए? जयराम महतो हो गए। और उन्हें आइसोलेशन पीरियड में डाला किसने? उनके लोगों ने ही डाला। तो राजनीतिक चक्रव्यूह है जिसकी बिल्कुल, हम हमेशा हाँ, बात बिल्कुल, करते हैं। हाँ। और इस चक्रव्यूह से निकलना होगा जितनी जल्दी हो सके जयराम महतो को। सिर्फ ये बता देने से कि रिम्सट्रूग जो प्रस्तावित था, वहां जब आदिवासियों ने आंदोलन किया तो कुर्मी नेता ही साथ थे, ये सिर्फ इसका जवाब नहीं हो सकता। बतौर जयराम खुद को जब प्रोजेक्ट कर पाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने खुद को कुर्मी नेता प्रोजेक्ट किया, उस तरह से खुद को उन्हें प्रोजेक्ट करना होगा कि वो सिर्फ कुर्मी नेता नहीं है, वो पूरे झारखंड के नेता। झारखंड के नेता हैं। तब स्थितियां और तब आपको चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता शायद मिल पाएगा, वरना आपके ही लोग आपको इस चक्रव्यूह में और परत दर परत फंसाते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जयराम चक्रव्यूह में तो फंस ही गए हैं। अब देखना है कि इस चक्रव्यूह से जयराम निकल कैसे पाते हैं, ये बड़ा सवाल ये रहेगा। बड़ा सवाल और रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि उस चक्रव्यूह में ना अभिषेक भारती ने फंसा है ना आरती ने फंसा है, उनकी खुद की कौम ने हाँ, जो उनका बिल्कुल, सबसे बड़ी हाँ। समर्थक है उसी कौम ने फंसा है। देखिए जयराम कैसे निकलता है। नमस्कार। जो है जो है